Assalamu alaikum Zebest. Welcome to Zab FM Digital. I'm your host Fatma and you're watching Biotalk, where we delve deeper into the world of science and enlighten you about new researches in the field. Welcome back. We have an amazing episode here for you today, which is going to be on sterilization techniques, which is taken from the course of Principles of Biochemical Engineering. We have three amazing guests here with us today who will be able to enlighten us about the topic. So, without further ado, let me introduce you to Laiba, Fatima, and Tanveer. Assalamu alaikum, guys. How are you doing? We are good. How are you? Perfectly fine. That's the first time somebody's asked me that. Oh my god. So, how has your day been going so far? Actually, very tiring. Oh, really? Yeah. What We've been here happened? since like 8 a.m. Oh We my had god. So, is this your first podcast experience? Actually, Yes. no, I have recorded podcast, Oh. but ये as a guest मेरा पहला podcast. Oh, I have wow. always been behind the camera. It must be very special for you then? Kind of. Kind of. So, just for the audience sake, could you please introduce what semester you guys are in here at Zebist and what programs are you pursuing? Hello, I'm Laiba and I'm doing bachelor's in biotechnology, and this is my last semester. Last week. In the Oh, wow. This is Tanveer. I'm from Biotechnology 8A. Perfect. And I'm Fatima Ali. And I'm also from 8th semester, so it's like my last week. I'm so Yeah. relieved that it's ending. Don't you feel sad though? I do feel sad about it. Okay. I am relieved. I don't. You're also relieved. I I have think to that's travel a something. lot. Oh, you travel a lot to come here to Zebis then? Yes, Oh my god, you must be so relieved कि बस अब खत्म. exactly. अब मैं और नहीं कर सकती. You've been doing it for the 4 years you've been here. Yeah. Oh my So god. it's like 1.5 hour drive from my home Oh. to Javist. It's frustrating. At least it's about to और- end. मैं पहले बहुत एक्साइटेड थी, फिर मैंने अपेरेंटली पता नहीं क्यों यहीं पे मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिल कर दिया है. Wow. तो आई हैव लाइक मिक्स्ड फीलिंग्स. एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ, इरिटेट भी होती हूँ खुद ही कि Okay, okay. ऐसा डिसीजन मैंने क्यों लिया. बट नहीं. Lekin hopefully that goes well. Yeah, Definitely it inshallah. will, inshallah. Inshallah. So, okay, 8th semester students. I got the vibes from here कि क्या चल रहा है. Tanveer, would you like to add something to it? क्या कोई mental stresses हैं इस वक्त? Of course, you're about to graduate. मेरा तो निकाह है वैसे संडे Oh, को, तो मैं congratulations. बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ. Congratulations. इस वक्त तो काफ़ी टायरिंग है, स्ट्रेसफुल है, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें, तो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं. Wow, that, oh my god, I'm so happy for you. Thank Congratulations again. Of course, तो obviously अभी आप लोग बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, as you all said, तीनों के तीनों ही. और आप लोग मुझे पहले ये बताएं कि as बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या बचपन से ही शौक था कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, बायोसाइंस पढ़ेंगे, रिसर्च में जाएंगे, या कोई और ही बिल्कुल फील्ड से निकल के आप यहाँ पे आए हैं? नहीं जी, बिल्कुल ही फील्ड से निकल के आए हैं. ऐसा निकले कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि बायो. ओह. हम तो बचपन से प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे. ओह. कंप्यूटर साइंस फिर प्री इंजीनियरिंग, मैथ्स पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, बट नेवर बायो. सोचा भी नहीं था कि बायो पढ़ेंगे. That's a very big jump, definitely. एंड फिर एकदम से कोविड आया और Hmm. बायोटेक में एडमिशन ले लो, जल्दी से खुदा भाई ले लो. तो वो वाला हिसाब था. आई हैव अच्छा, ऑलवेज अच्छा. बीन अ बायोलॉजी स्टूडेंट, और मुझे था कि इसी फील्ड में कुछ करना है. हाँ. लेकिन बायोटेक्नोलॉजी जब हमने एडमिशन लिया, इट वाज काइंड ऑफ न्यू. इवन ज़ाबिस में भी बहुत पुराना नहीं था. बायोसाइंस पहले से था, बायोटेक न्यू ही था, और काफ़ी सारे अच्छे रिव्यूज़ पढ़े. फिर मेरी एक दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया कि मैंने यहीं एडमिशन लिया है, तुम भी यहीं आ जाओ. तो बस एडमिशन ले लिया. और बट इट हैज़ बीन रियली नाइस. अच्छा था, बहुत एक्सप्लोर करने को मिला. इट्स सच अ डाइवर्स फील्ड. Definitely, Yeah. I would agree with that. I would also agree with the fact that I came here because of a friend. So that's I'm not something that friends with her anymore, but yeah. that's some tea. Great. So Tanveer, what would you like to add to that? बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, ज़ैबिस्ट का जो एनवायरनमेंट है वो अट्रैक्टिव है काफ़ी. हमारी तरफ यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी है, सर सैयद यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट की वजह से ही मैंने एडमिशन लिया. मेडिकल फील्ड में आना था, लेकिन मैंने फिर बायोटेक्नोलॉजी Biotechnology करी. choose कर लिया. तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस गया है? Of course, even with Zebist and with biotechnology, कि क्या एहसासात है? अब आगे क्या करने का प्लान है? आई थिंक बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था. ये एक रोलर कोस्टर राइड समझ लें. Oh wow. अप्स एंड डाउन्स,
और बस मुश्किलात भी क्योंकि ऑब्वियसली एकेडमिकली देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ वेरी डिफिकल्ट Definitely. और कुछ पॉइंट्स लाइफ में ऐसे आते हैं where you just want to give up and don't want to do that but अल्हम्दुलिल्लाह with the help of our teachers और सबकी मदद से हम लोग अब खत्म कर रहे हैं हाँ, और Fine. इवन व्हेन इन स्टार्ट बिकॉज हमारा एडमिशन कोविड में हुआ था तो 3 सेमेस्टर्स तो हमारे ऑनलाइन थे तो हमें लगा बहुत ही ड्राई है कुछ मज़ा नहीं आ रहा पढ़ना ही नहीं है कि करना ही नहीं है छोड़ देते हैं प्रोग्राम स्विच कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से सेम क्लास में हमारे साथ अच्छा अच्छा. तो लेकिन जब हम फोर्थ सेमेस्टर से आई थिंक थर्ड सेमेस्टर से यूनिवर्सिटी आना शुरू हुए तो देखा कि नहीं यार मतलब कुछ तो है, कुछ अच्छा तो है. इंटरेस्टिंग Of course, क्योंकि हमारी फील्ड के लिए लैब वर्क ही तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है. लैब जब हमने करना स्टार्ट की ना खुद से प्रैक्टिकली कोई काम करना शुरू किया तो हमें हुआ कि नहीं यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ. बहुत सिर्फ पढ़ने इंटरेस्टिंग में है. मजा नहीं आता लेकिन जब आप करते हो तो बहुत मजा आता है करने सही में। बात है, सही बात है. स्टार्टिंग में फील्ड से रिलेवेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स नहीं थे ना इस वजह से हाँ, ये भी इंटरेस्ट बात नहीं है। था वो इंग्लिश उर्दू पाकिस्तान स्टडी ये सब चीज़ें चल रही Also थी maths, oh god, हाँ, it maths was था, so 2 difficult. semester. Definitely, I would agree. ऑनलाइन नहीं होता मैं तो कभी बात ही हाँ I love how Laima is like, okay, मैं तो सब कुछ बोल के जाऊंगी आज. लास्ट डे है मेरा यूनिवर्सिटी में मैं सब बोलूंगी Perfect. So of course आप लोगों ने अभी डिस्कस किया कि काफी इंटरेस्टिंग रहा है आपके लिए. तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा होगा तीनों में से किसी के लिए भी? माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी. Microbiology. अच्छा अच्छा, क्यों? इसमें बिकॉज ऑफ टीचर बहुत अमेजिंग अच्छा हाँ. डॉक्टर मैम अस्मा मैम अस्मा बशीर को वजह से अच्छा अच्छा, Because of मैम the way- अस्मा. शी टीच And the two of you? I agree with him Microbiology for you too? आई डू लाइक माइक्रोबायोलॉजी बट मेरे लिए एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट वाले कोर्सेज ज्यादा interesting Really? हैं। Yeah. That's the first time somebody's ever said that to me because सबको वो बहुत ड्राई लगते No, I हैं. am very much interested in environment. That's my favorite subject. Oh wow! So Yeah. is that where you're going to go after you're done with your Yeah, bachelor's? I'm already working in a waste management company. तो हमारा बहुत ज़्यादा फोकस environment, sustainability Oh, इन चीज़ों के wow. ऊपर ऑलरेडी है. तो and even my boss was also my teacher here. मैम एंजल वो पढ़ाती भी हैं यहाँ पे. अच्छा अच्छा. तो मैंने उनके साथ कोर्स लिया बस फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि चलो आ अब जाओ. आ जाओ मेरे साथ. तो इस तरह started but I really love the work and also I love the environment. Perfect. We need people like you. We need Yeah. more people like you, definitely. So, as Laiba said, she's working somewhere. Are the two of you doing something like a part-time job or anything, an internship? Actually, yes, I am working on a project जो कि एक private company और DAO के बीच में चल रहा है. It's a research project on cannabis. So Oh. it's a very big project and of course बता नहीं सकते कि क्या है project लेकिन बहुत interesting project है और बहुत मज़ा आता है जो भी वहाँ पे हमें supervise करते हैं लोग डॉक्टर मुश्ताक डॉक्टर अरशद दे आर ग्रेट और आई थिंक कि हमारी फील्ड इतनी डाइवर्स है कि हमें पता भी नहीं होता कि अच्छा ये भी कर सकते थे वाओ तो ये वाली अभी मैं उस पॉइंट पे हूँ मैं वो एक्सप्लोर कर रही हूँ Wow, very interesting. And Tanveer, anything you're doing? मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ लेकिन फिलहाल आई एम फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम माई होम अच्छा online. अच्छा, परफेक्ट. तो ऑब्वियसली आप लोगों ने इतना टाइम गुजारा है ज़ेबिस्ट में, तो कोई ऐसी बात जो हमेशा यहाँ से याद रहेगी, अपने साथ हमेशा रखेंगे? मैंने ना हमेशा सुना था कि यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स बड़े ख़राब होते हैं यूनिवर्सिटी में लोगों से बच के रहना होता है बट मैंने इन 4 years में आई हैव मेट अमेजिंग पीपल वाओ. एंड नॉट जस्ट इन माय क्लास पूरे ज़ेबिस्ट में लाइक मेरे सीनियर्स भी बहुत सारे और डिफरेंट प्रोग्राम्स के ना तो आई विल से कि मेरे दोस्त जो मुझे यहाँ पे मिले ना मैं उनको हमेशा रखूंगी How very sweet. Yeah. That's actually very nice. And anything you guys would like to add to that? आई थिंक फातिमा का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा फातिमा तो आपकी दोस्त है, वो नहीं बोलेंगी तो मसला हो I जाएगा. actually met my fiance over here. Oh my God! ज़ेबिस्ट तो फिर कभी भी नहीं भूलेगा. वो हमेशा याद मैं रहेगा. जानती थी उसको बचपन से लेकिन अच्छा, अच्छा. reunite वाली चीज यहाँ पे Yeah. अच्छा अच्छा, that's very sweet. Of course, it was very nice to have this chat with you, but we do need to come back to the actual Yeah. topic, which is sterilization techniques, of course. So, Fatima, could you tell me what sterilization is and how it is used in like labs? सो स्टेरिलाइजेशन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स जो अननेसेसरी ऑर्गेनिजम्स बायोप्रोसेस में मौजूद होते हैं
उनको किल कर दिया जाता है, जैसे कि फंगाई है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, और वो अननेसेसरी है हमारे बायोरिएक्टर में, उसको मार देना और स्टेराइल कर लेना पूरे बायोरिएक्टर को। अब ये क्यों ज़रूरी है करना? इसका जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, हमने एक प्रोडक्ट बनानी है, उस प्रोडक्ट की प्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू वर्क, राइट? अब अगर कोई कंटामिनेशन वहाँ मौजूद होगी ना, तो वो प्रोडक्ट सही काम नहीं करेगा, ना हमारे पास सही यील्ड आएगी। इसीलिए जो है स्टेरिलाइजेशन करना और सैनिटाइज करना बायो प्रोसेसेस को, और जो भी टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Perfect. Okay, so of course, when we are talking about sterilization, there have to be some main types. So, Laiba, could you elaborate a little on what are the main types of sterilizations? So we have 4 types. सबसे पहले हमारे पास हीट आता है, इसके अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास मॉइस्ट होता है, जिसके अंदर हम प्रेशराइज स्टीम के थ्रू करते हैं। एक हमारे पास ड्राई हीट में आता है, जिसके अंदर हम बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स, 2 to 3 आवर्स। उसके बाद हमारे पास केमिकल स्टेरिलाइजेशन आती है। बहुत सारे मटेरियल्स इस तरह के होते हैं जिनको हम बहुत अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो उस केस में हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, इथाइलिन ऑक्साइड हो गया, इस तरह के। देन वी हैव फिज़िकल स्टेरिलाइजेशन, जिसके अंदर हम जो है उसको फिज़िकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ़िल्टर आउट करते हैं कि अपने प्रोडक्ट के अंदर से। देन वी हैव रेडिएशन, ये तो हम बहुत ही कॉमनली सुनते हैं, यूवी रेज से, आयनाइजिंग रेज से हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डीनेचर करते हैं। Perfect. So you also mentioned moist heat sterilization, of course. Yeah. So basically, Laiba discussed moist heat sterilization. So Fatma, could you tell me what that process is and where is it used? मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में ना बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कोएगुलेट करके और उनको मार दिया जाता है। इट्स बेसिकली लाइक उनको उस हद तक पका देना जब तक कि भाई उनके अंदर से जान नहीं निकल जाती। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है ना, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये बहुत ईजीली, जैसे ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव के अंदर यू कैन स्टेरिलाइज सो मच ऑफ द मटेरियल जो कि आपके बायो रिएक्टर में, जो आपकी प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि कोई भी पाइप्स हो गए, कोई भी टूल्स हो गए जो वहाँ पे आप लेबॉर्ट्री टूल्स यूज़ करेंगे, या फिर आप कोई मीडिया जो यूज़ करेंगे, मीडिया पाउडर्स यूज़ करेंगे, जो भी आप यूज़ करेंगे उनको आप जो है ऑटोक्लेव कर सकते हैं, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। परफेक्ट। एंड हम अगर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन की बात कर ही रहे हैं, तो जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अच्छा, जो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है ना, वो बेसिकली इस्तेमाल कर रही है स्टीम को। स्टीम के ज़रिए जो है बहुत आसान होती है ट्रांसफ़र ऑफ हीट टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ड्राई हीट जो है, ड्राई हीट बहुत हाई टेम्परेचर होता है और बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। इट्स लाइक फॉर 2-3 आवर्स कंटिन्यूसली एट हाई हीट। तो उसके अंदर हम जो पाउडर्स होते हैं या फिर कोई ऐसे मटेरियल जिनको हाई हीट पे जो सही रहते हैं, मेटल हो गया, कोई भी टूल मेटल से बना हुआ, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो स्टीम वाला मेथड है ना, जो मॉइस्ट हीट वाला मेथड है, दैट इज़ मोर इफेक्टिव इन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली। बट अगर आपने किसी चीज़ को स्टेराइल करना है ना, किसी टूल को स्टेराइल करना है, तो ड्राई हीट इज़ बेटर। आई वांट टू ऐड समथिंग इन दिस। हम इसको इस तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल मेथड्स भी कह सकते हैं। जब हमारी कोई लैब्स होती हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी लैब है, हमारे उसमें जो भी पेट्री डिशेस हो गई या हम उसमें जो भी मीडिया बना रहे होते हैं, उसको हमें स्टेराइल करना ज़रूरी होता है। तो हम पहले उसको ऑटोक्लेव कर लेते हैं। सही सही। बट अगर हम किसी इंडस्ट्री में जाएं, कोई बड़ा सेटअप है, तो वहाँ पे हम ऑटोक्लेव मेथड यूज़ नहीं कर सकते। परफेक्ट, एग्जैक्टली, तो क्योंकि इस तरह से भी हम इसको क्लासिफाई कर लार्ज सकते हैं। स्केल होगा Yeah, तो फिर ये मेथड इस exactly. तरह सही नहीं रहता उसके लिए। परफेक्ट। तो आपने लाइबा हमें हीट स्टेरिलाइजेशन एंड केमिकल स्टेरिलाइजेशन के बारे में भी बताया था। तो व्हेन इज केमिकल स्टेरिलाइजेशन प्रेफर्ड ओवर हीट स्टेरिलाइजेशन? ओके, सो बहुत सारे मटेरियल्स इस तरह के होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं। तो उस केस में हम लोग केमिकल्स की तरफ आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्लास्टिक की एग्जांपल लें, अगर मैं प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दूंगी या बहुत ज़्यादा हीट दूंगी, तो वो डीनेचर हो जाएगा, वो मेल्ट हो सकता है। तो उस केस में हम लोग केमिकल्स को यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, इथाइलिन ऑक्साइड हो गया, इस तरह के। लेकिन इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, बहुत ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है अपने प्रोसीजर को, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी लेवल्स बहुत हाई होते हैं। बहुत हाई हो जाती तो है। उससे पूरा ऑप्टिमम मेजर्स उसके देखना, उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर वेज देखना, प्रॉपरली अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए केमिकल मेथड्स थोड़े कम यूज़ किए जाते हैं,
बट इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, हम उनको हीट नहीं दे सकते, हमें उनको Exactly. उनके लिए भी हमें केमिकल यूज करना पड़ता तो है। जो केमिकल स्टरलाइजेशन होती है वो आप लो लाइक लार्ज स्केल पे ज़्यादा यूज़ होती है, लार्ज स्केल पे Yeah. होती है। ज़्यादातर लार्ज स्केल के ऊपर होती है। जो हीट वाली होती है वो नॉर्मली लैब्स वगैरह में इजीली हो जाती है। परफेक्ट, तो ज़्यादातर लैब्स में आप Yeah. हीट वाली यूज़ करते हैं, Exactly. ठीक है। एंड फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन वाज आल्सो मेंशन्ड ऑफ कोर्स। सो तनवीर, आप मुझे बता सकते हैं कि फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन जो है वो होती किस तरह है और कहाँ यूज़ होती है? Filtration sterilization physically removes the contaminants from gas and liquid by passing them through the filters with the pore size of 0.2 microns. It basically essential for the heat sensitive liquids like vaccines, antibiotics, enzyme solutions, and all that. Okay, very, very interesting, of course. And we did do a podcast prior to this one about bioreactors. So I would like to ask you, Fatma, why is heat transfer very important in bioreactor processes? मतलब तो आप जब कोई भी काम करते हो उसकी एक ऑप्टिमल कंडीशन होती है, राइट? आप खाना बना रहे हैं, आपको पता है कि आपने क्या डालना है, कितना डालना है, किस तरीके से डालना है. इफ़ यू आर बेकिंग समथिंग, यू नो एट व्हाट टेम्परेचर यू नीड टू बेक दैट सर्टेन फूड, राइट, बेक्ड आइटम. उसी तरीके से बायो रिएक्टर में you need to have a maintained optimum temperature according to that the product that you're producing, according to the microorganism that you're using. अभी क्यों ज़रूरी होता है? देखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद जब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू जाते हैं ना, तो वो भी हीट छोड़ते हैं. वो हीट छोड़ते हैं तो उस वक्त जो है हीट को ऑप्टिमम रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कोई भी डीनेचरेशन ना हो. अगर डीनेचरेशन हो जाएगी तो आपकी यील्ड पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, और उससे भी ज़्यादा वो आपकी जो प्रोडक्ट की प्योरिटी होती है ना, उसको जेपरडाइज कर देगा. I love how Fatma always has a food reference to explain things. I think that's very interesting. So of course, while we are in the topic of bioreactors, Laiba, I'd like to ask you कि आपके पास ऐसा कौन सा equipment है जिसके थ्रू you're making sure कि ये heat transfer हो? ओके, सो हमारे पास मेनली दो इक्विपमेंट्स होते हैं. एक जैकेटेड वेसल्स होते हैं. वो बेसिकली क्या करता है कि जैसे हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, एक कूल करने के लिए और हीट टेम्परेचर, तो उन दोनों को रेगुलेट करता है, उनको बैलेंस आउट करता है कि जो कूलिंग एंड हीटिंग के लिए फ्लूइड्स उसके अंदर जा रहे हैं उनका टेम्परेचर किस तरह से कंट्रोल होगा. देन वी हैव हीट एक्सचेंजर्स. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि दो फ्लूइड्स हैं एक साथ और दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो रही है, बट वो दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे. तो इस तरह से ये दो कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोरिएक्टर्स में. Okay, that was Yeah. very interesting, definitely. So of course, जब आप बात कर रहे हैं in equipments की, with any machinery when you be talking about, there are always some sort of limitations. तो तनवीर, could you tell me कि वो limitations क्या हैं when we're talking about heat transfer in bioreactors? Basically, there are several challenges, including uneven heat due to poor mixing, and also जैसे fouling, scaling हो जाती है on the heat surface areas. So it basically lowers the efficiency of the process, and the most important is to maintain the heat throughout the process. परफेक्ट. तो अगर हम स्टेलाइजेशन और हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो स्टेलाइजेशन जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है हीट ट्रांसफ़र के लिए बायोरिएक्टर्स के अंदर? लाइबा. तो देखें, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वो कंटामिनेशन फ्री हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो ख़राब ना हो, उसके अंदर कोई मसला ना हो. तो इस वजह से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जब हम लोग हीट ट्रांसफर को कंट्रोल कर रहे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो वी मेक श्योर कि बायोरिएक्टर के अंदर कोई कंटामिनेशन ना हो, उसके अंदर जो उसका अपना इन्वायरमेंट है वो बैलेंस्ड हो, वो ऑप्टिमम हो, हर तरह से टेम्परेचर बैलेंस हो, ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत रिफाइन होके हाई क्वालिटी में आ सके हमारे पास. So, of I would course. actually like to add something to this कि जब हमारी प्रोडक्ट जो है कंटामिनेट नहीं हुई हुई होती है, प्योर होती है ना,
तो उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा होती है। अगर इन केस कि वो स्टेराइल ना हो हमारा बायोरिएक्टर और किसी भी किस्म की कंटामिनेशन हो जाए, तो ओवरऑल कॉस्ट जो होती है ना, जो उस प्रोसेस पे लगी हुई होती है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है कंटामिनेशन का होना। इसीलिए भी जो है वो स्टेरिलाइजेशन का होना और साफ़ सुथरा होना हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो स्टरलाइजेशन होती है उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है या इफेक्ट आता है? इफ यू कुड इलैबोरेट अ लिटिल ऑन दैट। बेसिकली जो हमारे प्रोडक्ट को स्पॉइल कर रही है वो है कंटामिनेशन। तो अगर तो हमारे प्रोडक्ट में कंटामिनेशन है तो इट अफेक्ट्स द पोटेंसी, द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ऑल। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जो कंटामिनेशन है उसको फ्री करना है। अच्छा, तो फिर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर हो बेहतर जाती है हो सकती है उससे। इस चीज़ से। परफेक्ट। क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं तो वो किसी भी किस्म की खराबी पैदा कर सकते हैं, कर और देते एक हैं। दफा वो प्रोडक्शन हो गई कंप्लीट और फिर उसके अंदर कंटामिनेशन आई, तो वो एक पूरा न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोसीजर शुरू से। और जो पिछला उसके अंदर प्रोडक्ट है एग्जैक्टली, it's और फिर उसके waste। अंदर एक तो सबसे बड़ी चीज हमारे पास आती है मनी। उसमें कितने Exactly. पैसे खर्च हो रहे हैं, फिर टाइम कितना हमारा वेस्ट हो गया, तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। so you need to keep in mind Yeah. everything when you're working with Yes. sterilization. Yeah, when we were working, Fatma and I, we were working in SIDH in microbiology lab, तो हमारा फर्स्ट वीक था, हमसे एक गलती हो गई थी कि हमने ऑटोक्लेव करना था पेट्री टिश्यूज को और फिर उसमें मीडिया डालना था, बट हमें ऐसा लगा कि मीडिया डालने के बाद ऑटोक्लेव करना होता है। अच्छा। और हमने ऐसे ही किया, मीडिया पोर किया, सुबह सुबह आके बहुत एक्साइटेड हम कि यार हमने तो बहुत अच्छा काम किया, हमने उसको ऑटोक्लेव कर दिया। जब वो आ गया फिर सैंपल भी उसके ऊपर कल्चर भी हो गया, नेक्स्ट डे वो इतना अजीब कुछ उसमें कंटामिनेशन, सब बोल रहे हैं क्या मसला है, मतलब किया sample क्या है? ठीक नहीं लगा, ऐसा भी किया कि सारे ही सैंपल्स खराब थे। तो फिर बाद में हमने बताया कि अच्छा हमने तो सब कुछ ठीक किया था, पहले हमने मीडिया डाला फिर हमने ऑटोक्लेव किया। हमने कहा पहले ऑटोक्लेव करना होता है फिर मीडिया डालना होता है। तो फिर- वहाँ से हमने सीख लिया। लेकिन वही बात है, आप अपनी गलतियों से उल्टा ज्यादा बिल्कुल। सीखते हैं, तो ये गलती दोबारा तो कभी नहीं होगी। कभी नहीं हुई। So that was a very good session. Of course, we learned so much about sterilization, how it is very important, not only in industrial processes, of course, but even in like the most basic lab work. Uske Yeah. without आप कुछ कर ही नहीं सकते. Thank you so much, guys. You were great guests today. I learned so much from you. I'm sure the audience did too. Are there any parting comments you'd like to leave the audience with? We would really like to thank Ma'am Urusa. She chose us to do this podcast, do this topic, and she has been an amazing supervisor throughout our 4 years. How very sweet. We are very thankful to Ma'am Urusa. Thanks to her. Of course, this is a great opportunity कि आपको She जो gave चीज़ us। आपने 4 सालों में बार बार पढ़ी है उसको आप आगे सबको बता Yeah. सकते सही बात है, आप Yes. डिस्कस कर पा रहे हैं Discuss कर पा और रहे आप हैं। लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कस किया है। इवन कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज नॉट टेकन दिस कोर्स, मुझे काफ़ी चीज़ें आज पता चली हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड अ स्पेशल थैंक्स टू ऑफ कोर्स मिस रूसा फॉर गिविंग अस दिस opportunity to have a certain podcast, and of course thank you so much to the audience for watching today's episode. If you have any feedback, please leave it at feedback@zabfm.org, or if you don't have the time for that, please leave a comment down in the comment box. Thank you so much for watching today's episode. Stay tuned for the next one. This is your host Fatma signing off from Zab FM.